हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था मेरे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियसली हमने सॉल्व किया था एनिमल किंगडम, और जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 52 क्वेश्चंस देखे थे जो कि प्रीवियस 10 साल में नीट के पेपर में पूछे गए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, Family Fabaceae differ from Solanaceae and Liliaceae. With respect to the stamen, pick out the characteristics specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae और Liliaceae. 2023 का सवाल है ये। तो क्या क्या डिफरेंसेस है Fabaceae का Solanaceae और Liliaceae के साथ, देखते हैं। पहले तो देख लेते हैं Fabaceae क्या होता है। डाइडेल्फस एंड डिथेकसांथर होता है। सोलेनासी में क्या होता है, पॉलीआंड्रस एपिपेटलस एंड डिथेकसांथर। लिलियासी में क्या होता है, पॉलीआंड्रस एपिफाइलस एंड डिथेकसांथर। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ओके, डाइडेल्फस एंड डिथेकसांथर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड, एक्साइल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। एक्साइल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन किस में पाया जाता है ये, पहला चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन। हमारे पास पहले ही आंसर मिल गया ये, बाकी किसी में नहीं होता। चाइना रोज, टोमेटो, पिटूनिया एंड लेमन शो एक्साइल प्लासेंटेशन। डायांथस एंड प्राइमोज शो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। Pea, lupin and beans show marginal placentation. Cucumber and mustard show parietal placentation. Now, assertion result type questions. A flower is defined as modified shoot where the shoot apical meristem changes to floral meristem. Okay. Reason: internode of the shoot get condensed to produce different floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. यहाँ पर assertion करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, तो और यहाँ पर फॉलो भी कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। The flower is a modified shoot where the shoot apical meristem changes to floral meristem. Internodes do not elongate and the axis get condensed. The apex produces different kind of floral appendages laterally at the successive nodes instead of the leaves. Therefore, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option number B will be the correct one. Question number 4. In Calotropis, estivation is. Calotropis में estivation कैसा होता है ना, वेलवेट। ऑब्वियसली वेलवेट ही करेक्ट आंसर है हमारा, बाकी सारे गलत हो गए। ओके, when sepals or petals in a whole just touch one another at margin without overlapping, as in Calotropis, it is said to be velvet. Imbricate estivation is exhibited by Cassia. Twisted estivation is exhibited by China rose. And vexillary estivation is exhibited by P. तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा। क्वेश्चन नंबर 5. In a pea flower, 5 petals are arranged in a specialized manner with 1 posterior, 2 lateral and 2 anterior. These are named as and respectively dash. Keel, wing and standard, गलत, उल्टा कर दिया। वेक्सिलम, कील, स्टैंडर्ड, वेक्सिलम नहीं होगा। कील, स्टैंडर्ड, काना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, स्टैंडर्ड विंग्स एंड कील्स। इन ए टिपिकल पी फ्लावर which is a type of papilionaceous flower, the petals are arranged in a specific pattern. The single large posterior petal, often larger and more visually striking than the other, is known as the standard or banner. The 2 lateral petals are referred to as wings.
The two anterior petals are usually fused at the edge and form a structure that looks like a boat's keel, which is why they are called the keel. The arrangement is standard wings and keel. Okay, option D will be the correct answer. Now question next one, which will be asked in the 2022, with the following statement is not correct. गलत कौन सा है इनमें से? पहला, राइजोम इज थिक, प्रोस्टेट एंड ब्रांच्ड। राइजोम थिक है, प्रोस्टेट है, ब्रांच्ड है, ये तो करेक्ट है, हमें रॉन्ग ढूंढना है। ओके, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। राइजोम इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम। ऑब्वियसली राइजोम में कंडेंस्ड फॉर्म है स्टेम का। थर्ड, द एपिकल बड इन राइजोम ऑलवेज रिमेन्स अबव द ग्राउंड। एपिकल बड ग्राउंड के ऊपर रहता है, बिल्कुल सही। द राइजोम इज एरियल विथ नो डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये गलत हो गया। राइजोम इज ए अंडरग्राउंड सब एरियल स्टेम, it bears distinct nodes and internodes. Okay, so D1 is the incorrect one. Question number 7. The type of tissue commonly found in the fruit wall of nuts is. नट्स के ऊपर किस तरह का टिश्यू पाया जाता है? पहला, स्क्लेरॉइड, स्क्लेरिड, और यही करेक्ट आंसर है, बाकी सारे गलत हो गया। The sclerid are the spherical, oval and cylindrical, highly thickened dead cells with very narrow cavities. These are found commonly in the fruit wall of nuts. So, A will be the correct answer. Okay. Next one. Question number 8. Matching. Imbricate, velvet, vexillary, twisted, और लिस्ट में दिया गया है कैलोट्रोपिस, कैसिया, कटन, बिन। मैचिंग करना है आपको, कौन सा एस्टिवेशन किसका है। ओके। 8. इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट फाउंड इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन फाउंड इन कैसिया, वेलवेट एस्टिवेशन फाउंड इन कैलोट्रोपिस, vexillary estivation found in bean, twisted found in cotton. So 2 1 4 3 2 1 4 3 यहाँ पर होगा सी वाला, पर यहाँ पर दो जैसे ऑप्शंस आ गए तो इसको 2 कर दो। ओके, सी विल बी द करेक्ट वन, प्रिंट मिस्टेक है थोड़ा सा बस। ओके, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। Question number 9. The floral diagram represents which one of the following family? कौन सा फैमिली को दिखाता है जो फ्लोरल डायग्राम है? लेलियासी, फाबासी, ब्रासिकेसी एंड सोलानासी। तो आंसर होगा आपका, इट शोज ब्रासिकेसी, ऑप्शन सी। It can be easily identified by looking on its parietal placentation. पेरिटल प्लेसेंटेशन शो करता है ये, और ब्रासिकासी में ही ये पेरिटल प्लेसेंटेशन होता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, मोर देन वन हो सकता है करेक्ट स्टेटमेंट इसमें, तो देखो The leaflets are modified into pointed hard thorns in citrus and bougainvillea. पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। Axillary bud forms slender and spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. Yes, B वाला स्टेटमेंट सही है। Stem is flattened and fleshy in opensia and modified to perform the functions of leaves. Okay, ये भी करेक्ट है, तो B and C both are correct. Rhizophora shows vertically upward growing root that helps to get oxygen for respiration. Yes, Rhizophora mangrove plant में पाया जाता है ये।
सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये भी ठीक है। तो देखो बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, axillary buds and stem gets modified into woody street in pointed thorns, and thorns are found in many plants such as citrus and bonfila. Next, question number 11. Which one of the following plants shows vexillary estivation and didelphus stamen? Vexillary estivation, didelphus stamen किसके फीचर्स है? ये फाबासी प्लांट के फीचर है ये। ओके, फैमिली फाबासी के फीचर है ये। और इनमें से फाबासी कौन आ गया ना यहाँ पर? पी प्लांट, पिजम सैटिवम। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, किस में फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक है? 12. तो देखो, मस्टर्ड में फ्लावर जाइगोमॉर्फिक नहीं है, और गुलमोहर में बिल्कुल है, गुलमोहर का फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। और फिर कैसिया का फ्लावर भी जाइगोमॉर्फिक है। डाटूरा चिल्ली दोनों का जाइगोमॉर्फिक नहीं है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी एंड सी ओनली। When a flower can be divided into two similar half only in one particular vertical plane, it is zygomorphic. For example, pea, gulmohar, bean, cassia, mustard, datura, and chili. Also actinomorphic flower. Pea, gulmohar, bean, cassia, they show zygomorphic. Mustard, datura, chili, they show actinomorphic flower. Okay. Question number 13. Which part of the fruit labeled in the given figure makes it a false fruit? So 13 में कौन दिया? देखो, ABCD 4 पार्ट दिया गया है। कौन सा पार्ट बताता है कि ये फॉल्स फ्रूट है? तो आंसर क्या होगा? सी वाला पोर्शन, थैलामस। ओके, the given figure is a false fruit. False fruit develop from other floral part and thalamus along with the development of ovary wall. So thalamus is the correct answer. Question number 14. Match column 1 with 2. यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला दिया गया है और कॉलम 2 में दिया गया है फैमिली का नाम। पहला वाला मैचिंग करने को कहा है। देखो, पहला जो दिया गया है कॉलम ए में, इस तरह का फ्लोरल फॉर्मूला किस प्लांट के होते हैं ना? ये पाए जाते हैं फाबासी में। बी का बाइसेक्सुअल K5C5A5 एंड G2, ये ब्रासिकेसी में नहीं होता, लिलियासी में नहीं है, फाबासी में नहीं है। तो बचा कौन? ऊपर देखते हैं कौन बचा? सोलनासी। हाँ बिल्कुल, तो इसका हो गया 4 पॉइंट। बी का क्या हो गया? 4, सोलनासी। ओके, सी की बात करेंगे, इस तरह का है 3+3 A3+3 है, तो ये आपका आ जाएगा लिलियासी में। ओके, और जो रह गया वो ब्रासिकेसी में आ जाएगा। सो A3B4C2D1, A3B4C2D1 देखो कौन सा है? ऑप्शन नंबर लास्ट, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15. रे फ्लोरेट हैव किस तरह का ओवरी होता है इनमें? तो क्या सुपीरियर ओवरी होता है, हाइपोगाइनस ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी होता है इनमें रे फ्लोरेट।
एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, द थैलेमस मार्जिन डेवलप्स अपवर्ड इन एपिगाइनस फ्लावर एंटायरली एनक्लोजिंग एंड फ्यूजिंग विद द ओवरी. द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर ascends above the ovary. As a result, the ovary is considered inferior. For example, sunflower reflorescence. ये था आपका एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 16. The root that originates from the base of the stem. Base of the stem क्या कहते हैं उससे? प्राइमरी रूट बिल्कुल नहीं, प्रॉप रूट भी नहीं, लेटरल रूट भी नहीं. तो आंसर क्या होगा? फाइब्रस रूट. द प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स इन सेवरल मोनोकॉट्स. द फाइब्रस रूट सिस्टम इज मेड अप ऑफ रूट दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. द फाइब्रस रूट इज द करेक्ट आंसर. 17. द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन. किसमें ओवरी हाफ इंफीरियर है? क्या मस्टर्ड में है? नहीं. सनफ्लावर भी नहीं. प्लम ही आपका आंसर है, ब्रिंजल में भी नहीं होता. तो ऑप्शन सी प्लम विल बी योर करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन की बात करें, द ओवरी लाइज एट द सेंटर ऑफ पेरिगाइनस फ्लावर व्हाइल द अदर फ्लोरल एलिमेंट्स आर पोजिशन्ड ऑन द थैलेमस रिंग. द ओवरी इज कंसिडर्ड टू बी हाफ इंफीरियर इन दिस केस एज इन प्लम, रोज एंड पीच. नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का है ये. करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड प्लांट में किस तरह के फ्लावर्स आते हैं ना? हाइपोगाइनस फ्लावर्स आते हैं. और हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है? गाइनोसियम टॉप पोजीशन पे होता है और बाकी के फ्लावर के जो पोर्शन है वो सब उसके नीचे होते हैं. तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम? पहला, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड अदर पार्ट अराइज बिलो द ओवरी. गलत हो गया पहला पॉइंट. गाइनोसियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट कवर इट पार्शियली. नहीं होता. गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन सेंटर एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर लोकेटेड इन द रिम ऑफ थैलेमस एट द सेम लेवल. सेम लेवल पे भी नहीं. गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट इज बिलो इट. बस डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है आपका. ओके, ये तो होता है हाइपोगाइनस फ्लावर का. क्वेश्चन नंबर 19. फिर से फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया है. देखो लिलियासी का सेम अभी हमने किया था. लिलियासी ये वाला तो था लिलियासी का, ये वाला 3+3. देखो 3+3 कहाँ है? बस मिल गया आपका आंसर. ऑप्शन नंबर बी 19 का. लिलियासी द लिली फैमिली एज इट इज मोर ऑफन नोन इज ए मोनोकोटिडिनस प्लांट फैमिली. 20 की बात कर रहे हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट. दोनों में कौन सा फीचर करेक्ट है? ओके, सो देखो, इन बोथ फ्रूट इज ए ड्रूप. मैंगो को भी ड्रूप कहा जाता है, कोकोनट को भी ड्रूप कहा जाता है. तो पहला तो करेक्ट हो ही गया. एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ. नहीं, ये पॉइंट गलत हो गया. मेसोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस व्हाइल एंड इन मैंगो इट इज फ्लेशी. बिल्कुल सही. इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी ओवरी ऑब्वियसली. सो 1, 3 and 4 are correct one. Option number D will be your correct answer. The fruit is known as drupe in mango and coconut. They are one-seeded and develop from monocarpillary superior ovary. An exterior thin epicarp and middle fleshy edible mesocarp and an inner stony hard endocarp distinguishes the mango pericarp. The mesocarp of coconut, which is also a drupe, is fibrous. Endosperm is the edible component of the coconut. ये था आपका एक्सप्लेनेशन. 21 की बात करेंगे. 2019 का क्वेश्चन है ये. देखो अच्छे से. प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट इज डैश. किसमें होता है ये? बसल नहीं, एक्साइल नहीं, पेरिटल आंसर है. फ्री सेंट्रल भी गलत है. एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. The ovule develop on the inner wall of the ovary or in the peripheral region of the ovary is in
parietal placentation. Example, mustard, argemone, and so on. Pneumatophore occurs in. Pneumatophores occurs in. किस में होते हैं न्यूमाटोफोर? हालोफाइट्स, बाकी सारे गलत। न्यूमाटोफोर क्या होता है ना, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो प्लांट पाया जाता है, उस प्लांट वो तो मार्सी एरिया में ग्रो करता है, हमेशा सॉइल के ऊपर पानी जमा रहता है, तो वो ब्रीदिंग करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए रूट्स सॉइल के लेयर के ऊपर आ जाते हैं और उसमें होते हैं छोटे छोटे पोर्स, होल होते हैं उसमें छोटे छोटे, उनको हमने नाम दिया न्यूमाटोफोर्स। और ये सिर्फ पाए जाते हैं किसमें? हालोफाइट्स में पाए जाते हैं। अब एक्सपेंशन की बात करेंगे तो क्या होगा? हालोफाइट्स आर फाउंड इन हाई salinity environment such as mangrove swamp, marshes and sloughs, as well as in seashore. To compensate for the absence of soil aeration, halophiles grow pneumatophores, a form of negatively geotropic root, or we can say breathing root. ओके, ये था आपका एक्सप्लेनेशन। 23 की बात करेंगे। स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो क्या है? मॉडिफाइड adventitious root. Option B. Sweet potato is modified lateral or adventitious root. ये था आपका एक्सप्लेनेशन। 24. Root hair develop from the region of. Root hairs develop from the region of dash. कहाँ से ग्रो करते हैं भाई? ये ग्रो करते हैं मैच्योरेशन से, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। बाकी सारे गलत। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। These are very fine, delicate thread-like structure created by epidermal cells in the maturation region, which is located behind the elongation region. Water and mineral from the soil are absorbed by them. So, maturation will be the correct answer. 26 क्वेश्चन नंबर, कोकोनट फ्रूट इज ए। अभी हमने सॉल्व किया था, कोकोनट क्या है? ड्रूप होता है ना, ऑप्शन ए। A drupe is a type of coconut fruit. 27. In Bougainvillea, thorns are the modifications of. Thorns are the modifications of. किसके modified है? Stem. Thorns are harsh pointed trait constructions for protection. These are stems that have been altered. Stem altered होके thorn बदल जाता है इनमें। Okay? Question number 27. The morphological nature of the edible part of coconut is. कौन सा पार्ट एडिबल है? अभी तो डिस्कस किया था, एंडोस्पर्म। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। ड्रूप इज द नेम गिवन टू द कोकोनट फ्रूट। द एंडोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड विद टेंडर मिल्क। द एडिबल कोकोनट फ्लेश is formed at the cellular layer of endosperm and deposited along the wall of the wall as development occurs. So endosperm will be the correct answer. 28. Opposite type of phyllotaxy is not present in. Opposite type of phyllotaxy is not present in dash. तो क्या होगा आंसर? मैंगो। बाकी सब में होता है फाइलोटैक्सी। अब फाइलोटैक्सी क्या होता है? लीव्स की अरेंजमेंट। मैंगो में नहीं होता ये। At each node, a pair of leaves emerges and lies opposite each other. For example, calotropis, guava, and mint. Not mango. 29. An inflorescence with younger flower at the base and the older one at the apex is known as. क्या कहलाएगा? नए फ्लावर बेस पे होते हैं, पुराने फ्लावर टॉप पे होते हैं, एपेक्स पे होते हैं। क्या कहलाएगा वो? साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। द मेन एक्सिस ऑफ द साइमोज इन्फ्लोरेसेंस स्टॉप्स इन ए फ्लावर लिमिटिंग इट्स एक्सपांशन. द ब्लूम्स bloom in a basipetal pattern
Flowers that are younger are found near the base, while those are older are found at the top. Question number 30. Tetradynamous stamen are characteristics of. Tetradynamous stamen are characteristics of. किसके characteristics हैं? पहला ही ऑप्शन ब्रासियसी इज योर करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. ब्रासियसी में कौन आता है? मस्टर्ड आता है. मस्टर्ड हैज 6 free stamen, the inner 4 of which are huge and the outside 2 which are little. Tetradynamous stamens. ओके, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था. 31 नंबर. In root, absorption of water and mineral mostly occur in the. किस रीजन में होता है ये? सो 31 ऑब्वियसली जहां पर न्यू रूट फॉर्म होते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, अभी डिस्कस किया था. एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. सम एपिडर्मल सेल्स डेवलप रूट हेयर which are very tiny and delicate thread-like structures that emerges from the maturation zone. The soils, water and minerals are absorbed by these root hairs. So, C will be the correct answer. Question number 32. Free central placentation is found in. Free central placentation is found in. किसमें होता है ये ना? ऑप्शन सी, डायंथस. The placentation is called free central when the ovules are born on the central axis and the septa are missing, as dianthus and primose. So dianthus is the correct answer. 33. Radial symmetry is found in the flowers of. Radial symmetry किस flowers में पाए जाते हैं ना? यहाँ पर किस में होगा radial symmetry? मस्टर्ड, ब्रासिका में होगा. Mustard, brassica, datura and chili are all actinomorphic radial symmetry flowers that may be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center. So C will be the correct answer. Next 34. How many plants among Indigofera, Sesbania, Salvia, Allium, Aloe, mustard, groundnut, radish, gram and turnip have stamens with different length in their flower? कितने प्लांट्स में इसे स्टामेन है और फ्लावर का लेंथ भी डिफरेंट है ना. 34 की बात करेंगे तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी होगा आंसर. तो किस किस में होता है ये ना? साल्विया में होता है और आपका मस्टर्ड में होता है. मस्टर्ड के बाद रेडिश में होता है और किस में होता है? और ये आपका होता है टर्निप. 4 हो गया तो 4 will be the answer. Next question 35. The term polyadelphous is related to. Polyadelphous किसको कहलाता है ये? 35. देखो इंपॉर्टेंट है ये टर्म. किसके साथ रिलेटेड है ये ना? एंड्रोसियम. एक्सप्लेनेशन समझो अच्छे से. Androecium is made up of stamens. The stamens can be grouped into a single bunch, that is monodelphous, 2 bundles, didelphous, or more than 2 delphous, polydelphous, as in China rose, or more than 2 bundles, as in citrus. तो ये था आपका पॉलीएडेल्फस के एग्जाम्पल, चाइना रोज एंड citrus. 36. Stamen modified into flat green organs for forming the functions of leaves are known as. क्या कहलाएगा ये? ना आपका ये आंसर होगा फाइलोक्लैड्स. Phylloclades.
Phylloclades, stems that have been transformed into flat green organs that serve the same task as leaves. Example, euphorbia, flattened stem, opuntia, cylindrical stem. So phylloclades will be the correct answer. Okay, next 37. Because the following is not a stem modification. नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन पूछा है, ठीक है, तो क्या होगा आंसर? पिक्चर ऑफ नेपेंथिस. एक्सप्लेनेशन. modified leaves are found on insectivorous plants such as pitcher plant, nepenthes and Venus flytrap plant. So A will be the correct answer. Next question 38. Tricarpillary syncarpus gynoecium is found in flowers of. इसमें होता है ट्राइकार्पिलर सिनकार्पस लिलियासी फ्लावर. Gynoecium is tricarpillary syncarpus, ovary superior, trilocular with multiple ovules and axile. Placentation is present in the Liliaceae family. So A will be the correct answer. Next 39. The standard petal of Papilionaceous corolla is also called. The standard petal of Papilionaceous corolla is also called. क्या कहलाता है ये? वैक्सिलम. ऑप्शन सी वैक्सिलम. There are 5 petals, the largest which overlap the 2 lateral petals which overlap the 2 smallest anterior petals, that is known as vexillary estivation और vexillium कहलाता है. Next 40. Leaves become modified into spine in. किसमें होता है? Leaf modified into spine. Option C Opuntia. Under xerophytic adaptations, Opuntia leaves become transferred into spines to minimize transpiration. Okay, so C will be the correct answer. Next 41. Keel is the characteristic feature of flower of dash. किसका फीचर है ये? कील. बताओ. कील इज द फीचर ऑफ ऑप्शन डी सर इंडिगोफेरा. कील इज a feature of Fabaceae family which was previously known as Papilionidae. Gram, अरहर, मूंग, सेम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इंडिगोफेरा, सनहैम, सिस्बानिया, Trifolium, lupin, sweet pea and muliati are examples of these plants. Okay, याद रखना ये सारे points. Perigynous flower are found in. Perigynous flowers are found in. किसमें होता है ये? ना, rose is the answer. Perigynous means the gynoecium is in the center and the other part of the flower are on the thalamus rim, almost at the same level. तो एग्जाम्पल क्या क्या होगा ना? पीच, रोज एंड प्लम. तो रोज विल बी द करेक्ट आंसर. 43. ओवरी इज इंफीरियर इन. किसमें ओवरी इंफीरियर होता है? एपिगाइनस फ्लावर में. और एपिगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, रेफ्लोरेट, ये सारे क्या है? इंफीरियर ओवरी है. तो यहां पर क्या है? गुआवा है हमारे पास ऑप्शन में, तो गुआवा विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन. किसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है ना? ऑप्शन ए cucumber. A flower that consists of just stamen or carpel is called unisexual. Cucumber, maize, papaya and so on are unisexual flowers. 45. Roots that play insignificant role in absorption of water is Pistia.
is the correct answer. Floating roots are spongy white roots that emerges from the node stem and store air. They aid aquatic plants in maintaining their position on the water surface. जैसे कि Jusia and Pistia are example. 46. Axial placentation is present in. Axial placentation किस में पाया जाता है? एग्जाम आंसर होगा ऑप्शन ए लेमन. एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. दैट इज कंसिडर्ड टू बी द एक्साइल व्हेन द प्लासेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर लिंक्ड टू इट्स इन ए मल्टीलोकुलर ओवरी. फॉर एग्जांपल चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन. सो लेमन हमारे पास है तो लेमन इज द आंसर. 47. Among China rose, mustard, brinjal, potato, onion and tulip, how many plants have superior ovary? क्वेश्चन देख रहे हो किस तरह से है. तो क्या होगा? चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, ओनियन, ट्यूलिप, इन सब में तो सुपीरियर ओवरी होता है. तो आंसर क्या होगा? ऑल 6 ऑफ देम. सुपीरियर इन हाइपोगेनस फ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, पोटैटो, ओनियन, ट्यूलिप. तो आंसर ए, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 6. 48. An aggregate fruit is one which develops from. Aggregate fruit क्या होता है? किसे कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट? ना जिसमें एक फ्लावर होगा लेकिन बहुत सारे ओवरी होंगे, उस तरह के ओवरी से जो फ्रूट फॉर्मेशन होगा उसको हमने कहा एग्रीगेट फ्रूट. जैसे कि एग्जांपल आपका रास्पबेरी. सो यहां पर आंसर क्या होगा? ना मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस गायनेसियम. ऑप्शन सी मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस गायनेसियम. एग्जांपल मैंने बताया आपको रास्पबेरी. अब एग्रीगेट फ्रूट इज ए फ्रूट इन विच देयर इज वन फ्लावर बट मेनी ओवरीज. ड्यूरिंग डेवलपमेंट द ओवरी ऑफ द फ्लावर फ्यूज टुगेदर producing what appears to be one unit of the fruit. These fused ovaries are known as carpels with distinct style, stamen and ovaries. So answer होगा क्या? ऑप्शन सी मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस गायनेसियम. क्वेश्चन नंबर 49. Which one of the following statement is correct? A sterile pistil is called staminode. पहला गलत है. The seed in grasses is not endospermic. ऐसे कैसे नहीं होते? होते तो हैं. Mango is a parthenocarpic fruit. है गलत. A proteinaceous aleurone layer is present in maize grain. ये सही है. So D वाला स्टेटमेंट सही है. अब जो गलत है, क्यों गलत है, कहां पर गलत हुआ ये देखो. पहला 49. A sterile pistil is called pistilode. Pistilode कहलाएगा ना कि staminode. Sterile stamen is called staminode. तो हो गया पहला गलत. The seed in grasses is not endosperm. Not नहीं होता तो आंसर सही होता, ये स्टेटमेंट सही होता. Mango is a parthenocarpic fruit. Mango is a parthenocarpic नहीं है. Mango क्या है? Seeded fruit है, बीज से निकलता है. Seeded SEEDED. ओके, और डी वाला तो करेक्ट है ही. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 50. When the margin of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as. क्या कहलाएंगे इसे? Now this is termed as imbricate. Imbricate occurs when sepals or petals in a whole overlap at the margin without any particular direction. So imbricate is the correct answer. 51. An example of edible underground stem is. Example of edible underground stem is. पहला ही आंसर है पोटैटो. Explanation.
Food storage causes edible subterranean stem to develop fleshy and tuberous potato. Tuberous जिसका एग्जाम्पल से पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जामिन कांड एंड कोलोकासिया आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स. 52. Placenta and pericarp are both edible portion in. किसमें होते हैं? प्लासेंटा भी खाते हैं, पेरिकार्प को भी खाते हैं. टमाटो. टमाटो है फ्लेशी प्लासेंटा एंड पेरिकार्प. ओके, ध्यान रखना इसे. 53. Among bitter gourd, mustard, brinjal, pumpkin, china rose, lupin, cucumber, sunham, gram, guava, bean, chili, plum, petunia, tomato, rose, Withania somnifera, potato, onion, aloe, and tulip. How many plants are hypogynous flower? Have hypogynous flower. Hypogynous मतलब गाइनोसियम सबसे ऊपर होना चाहिए, हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन पे होना चाहिए. तो किन किन के पास है, कितने में है ये? यहाँ पर 15 विल बी योर आंसर. चलो गिनते हैं 15 हो रहे कि नहीं हो रहे. ब्रिंजल, मस्टर्ड, ट्यूलिप, एलॉय, ओनियन, पोटैटो, ग्राम, बीन, चिली, चाइना रोज, लुपिन, टमाटो, Withania somnifera, पेटूनिया, सनहैम. गिनो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है आंसर. ध्यान रखना इसे. नेक्स्ट 54. सीड कोड इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन. जिसमें सीड कोड थिन नहीं है मतलब थिक है ऑटोमेटिकली. मेम्ब्रेनस भी है तो ऑब्वियसली किसमें है? कोकोनट होगा. थिक सीड कोड किसमें होता है? और द सीड कोड ऑफ कोकोनट, ग्राउंडनट, ग्रामे एंड मेज आर थिन, whereas the seed coat of coconut are thick. Last question इस चैप्टर से. इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर. चाइना रोज में फ्लावर्स कैसे हैं? देखो किस तरह के होते हैं चाइना रोज में. जाइगोमॉर्फिक एपिगैनस ट्विस्टेड एस्टिवेशन नहीं. एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगैनस ट्विस्टेड एस्टिवेशन बिल्कुल करेक्ट. सी एक्टिनोमॉर्फिक एपिगैनस वेलवेट गलत. जाइगोमॉर्फिक हाइपोगैनस एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन गलत. तो क्या होगा आंसर? बी विल बी योर आंसर. एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक व्हेन ए फ्लावर में बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स in any radial plane passing through the center. Twisted refers to when one appendages of margin overlaps that of the next and so on, as in China rose, ladyfinger and cotton. So option B हमारा आंसर है. और इसके साथ हमने 55 क्वेश्चन कर दिए हैं इस चैप्टर के जो प्रीवियसली पूछे गए थे 10 साल में. ईयर बाय ईयर सब कुछ लिखा गया आपके सामने. क्वेश्चन भी आपने देखा किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हमने सबको सॉल्व किया भी. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा. और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी करने को कहिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट आते रहे मेरे वीडियोस के. आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आने वाले नीट एग्जाम्स के लिए और बाकी पेपर के लिए भी. थैंक यू. जय जगन्नाथ.